So today we will discuss about some important properties of solution and the concentration of solutions. So what are the main properties of a solution? So number one is that solution is actually a homogeneous mixtures, because whenever you observe a solution you will always see a single phase, means a solution can be liquid, gas or solid. Okay. number 2 number 2 is their particle size. So the size of particles of a solution is generally less than 1 नैनोमीटर. यानी आपके सोल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके एक पार्टिकल का जो डायमीटर होता है वो 1 नैनोमीटर से भी कम होता है. दैट मीन्स दे कांट बी विजिबल even with the microscope. So that's why we can't see the particles of the solution with the naked eye. So we actually need very high resolution microscopes to see their particles. Number 3 is they are not able to show the Tyndall effect. So what is Tyndall effect? It means that when you put the light on the solution, so you will not be able to see the path of light. Okay. In the case of Tyndall effect, like if you take your milk, so when you put the light on the milk in the dark room, you can see that the path of light is visible, and this path is actually conical shape. So this phenomena in which you can see the conical path of light inside the solution is known as Tyndall effect, but it is not observed in solutions because their particles are very small and they are not able to scatter the light. Okay. Number 4 is that they are stable. जैसे कि अगर आपके पास कोई सस्पेंशन है, फॉर एग्जांपल द मिक्सचर ऑफ chalk and water, the mixture of calcium carbonate and water, the mixture of sand and water, the mixture of sand and of your soil and water. कुछ देर बाद क्या होता है कि इनके जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं एट द बॉटम, बट सोल्यूशन में ऐसा नहीं होता. अगर आपका सोल्यूशन ठीक तरीके से बनाया गया है और उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो हमेशा जो है कंटिन्यूअस मोशन में रहेंगे, वो कभी भी कोगुलेट होकर नीचे सेटल डाउन बॉटम पे नहीं होते. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप आपके घर में जो सॉल्ट है, डिजॉल्व दैट सॉल्ट इन द वाटर. अगर हाँ ओके, so you can see that salt will not get settled down at the bottom. Okay. And the last and very important point is that you can't separate the solute particles of a solution with the help of filtration process. That means they can't be filtered. ठीक है. तो अगर आपको सोल्यूट को
उसके सॉल्वेंट से अगर अलग करना है, सो यू नीड डिफरेंट special methods by which you can separate them, but by filtration it is not possible. Okay, now come to the next point, that is your concentration. So in basic science, the meaning of concentration is the amount of solute present in unit volume or unit amount of solvent or solution, or you can say that it is the ratio of solute and solvent, or it is the ratio of solute and solution. ओके, तो इसके थ्रू हमें मालूम पड़ता है कि हमारे पास जो सोल्यूशन है उसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच जो है वो क्या रेशियो है, और आप किसका अमाउंट जो है ज़्यादा है। यानी अगर परसेंटेज, अगर आपकी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब क्या है कि उसमें सोल्यूट ज़्यादा है और सॉल्वेंट कम है। अगर अगर उसकी वैल्यू बहुत कम आ रही है तो उसका मतलब सॉल्यूट बहुत कम है और सॉल्वेंट बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो केमिस्ट्री में किसी सोल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, और हम उन सबको सीखेंगे टिल योर सीनियर सेकेंडरी लेवल and at the high level also. The most common are mass percentage first, number 2 volume percentage, number 3 mass by volume percentage, number 4 molarity, number 5 molality, number 6 formality, number 7 normality, number 8 mole fraction, नंबर 9 पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, ये आपके सबसे इम्पॉर्टेंट जो है मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम अपने किसी भी सोल्यूशन के कंसंट्रेशन को चेंज कर सकते हैं, एंड वी कैन इंटरचेंज ऑल दीज यूनिट्स। ओके, तो आपके क्लास 9 के सिलेबस में हमें 3 मेथड्स पढ़ने हैं टू फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। तो पहला हमें सीखना है मास परसेंटेज, सेकंड आपका है वॉल्यूम परसेंटेज, और थर्ड है आपका मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, तो सिंपली इसको कंबाइनली परसेंटेज मेथड भी कहते हैं, क्योंकि हम इसमें जो कंसंट्रेशन है उसको किस फॉर्म निकालते हैं, इन द परसेंटेज फॉर्म। तो अगर आपको फाइंड करना है किसी सोल्यूशन का मास परसेंटेज, तो उसमें हमें क्या पता होना चाहिए, वी मस्ट नो द मास ऑफ सोल्यूट एंड द मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, दैट इफ यू वांट टू कैलकुलेट द concentration, डिवाइड द मास ऑफ सोल्यूट विद द मास ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, बाय एडिंग द मास ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, क्योंकि जो सॉल्यूशन होता है वो सोल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बना होता है। ठीक है, सो व्हेन यू विल डिवाइड the mass of solute with the mass of solvent, and when you get the value, and when you multiply this value with the 100, so you will get the percentage. मान लीजिए आपके पास एक बीकर है, उस बीकर में आपने 80 ml वाटर डाला और 20 ml आपने डाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब जो है सोल्यूशन मिक्स हो गया आफ्टर आफ्टर डिजॉल्विंग। अब कोई आपसे पूछे कि ये जो आपने सोल्यूशन बनाया है 100 ml का, इसमें इस सोल्यूशन का जो है मास परसेंटेज क्या होगा। ठीक है, तो
अब आपको पता है कि सॉल्यूट जो है वो हमारा 20 ग्राम है और जो वाटर है हमारा 80 ग्राम है। तो 20 + 80 = 100, यानी 100 ग्राम हमारा सोल्यूशन का मास हो गया। ठीक है, नाउ यू विल डिवाइड 20 बाई 100। ठीक है, तो 20 को आप 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1/5। ठीक है, अब 1/5 को आप जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 5 डिवाइडेड बाई 100, सॉरी 100 डिवाइडेड बाई 5 कितना आएगा? 20%। तो जो आपने सोल्यूशन बनाया है उसका परसेंटेज होगा 20%। सो इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन मास बाई मास। क्लियर? ओके, नाउ सेकेंड मेथड इज योर वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, यानी इसमें हम सोल्यूट और सॉल्वेंट के अमाउंट को जो है वॉल्यूम के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं, जनरली इन लीटर और मिलीलीटर। तो मान लीजिए आपने एक बीकर में अपने जो है 10 ml आपने लिया इथेनॉल और उसमें आपने ऐड किया 90 ml वाटर। ठीक है, तो आप जो सोल्यूशन बना वो कितने ml का बना? 10 + 90 100, यानी जो आपका सोल्यूशन का जो टोटल वॉल्यूम है वो कितना है? 100 ml। ठीक है, आप कोई आपसे पूछे कि फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ दिस सोल्यूशन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो हम क्या करेंगे? हम जो है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट को डिवाइड करेंगे किससे? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन से, एंड देन वी विल मल्टीप्लाई विद 100। ठीक है, तो मास सॉरी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट हो गया 10 और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हो गया 100, तो 10/100। अब 10 को 100 से आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1/10। ठीक है, अब 1/10 को जो है हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 10, यानी जो हमारा सोल्यूशन बना उसका जो कंसंट्रेशन है वो कितना है? 10%। सो एक्चुअली यू हैव मेड द 10% सोल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर and we got the percentage volume by volume. Okay, now the third method is mass by volume percentage. ठीक है, तो अब क्योंकि इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो आपका सॉल्वेंट है वो लिक्विड है और जो आपका सॉल्यूट है वो सॉलिड है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है, क्योंकि एक चीज़ जो है लिक्विड है, एक चीज़ सॉलिड है, तो यहाँ पर एक चीज़ जो है एक्सप्रेस है आपके लीटर या ml में, और एक चीज़ एक्सप्रेस है आपके ग्राम या किलोग्राम में। तो यहाँ पर हम इनको ऐड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे इनकी यूनिट्स डिफरेंट हैं। तो सिंपली हम इनको क्या करेंगे? इनको हम सिंपली बस डिवाइड करेंगे, इग्नोरिंग देयर यूनिट्स। तो इसके फॉर्मूला क्या होगा कि कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ योर सॉल्वेंट। ठीक है, इनटू 100। ठीक है, तो मान लीजिए आपने 100 ग्राम वाटर लिया। ठीक, उसमें आपने जो है 30 ग्राम अपने सोडियम क्लोराइड ऐड कर दिया। अब क्योंकि सोडियम क्लोराइड जो है वो आपका क्या है? सॉल्यूट है और वो सॉलिड है, और जो आपने वाटर ले रखा है वो लिक्विड है। ठीक, तो वी हैव एडेड 30 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इन 100 ml ऑफ वाटर। अब हमें फाइंड करना है इसका परसेंटेज अमाउंट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? वी विल जस्ट डिवाइड 30 बाई 100। तो अगर आप 30/100 को डिवाइड करें तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं कि वी कैन डिवाइड 100
200, ये हो जाएगा 1, 30 इंटू 1 कितना हो जाएगा 30%। ठीक है, तो यानी हमने जो सोल्यूशन बनाया सॉल्ट का वाटर में, उसका मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कितना हुआ 30%। ओके, तो इस तरह से हम जो है अपने सोल्यूशन के कंसंट्रेशन को फाइंड कर सकते हैं विथ एनी ऑफ दीज थ्री मेथड, डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट और अपॉन द नेचर ऑफ योर solute and solvent. We can take one more example. The question is, what amount of solute is dissolved to make 0.5 liter of 20% mass by volume solution? तो इस क्वेश्चन में वो आपसे पूछ रहा है कि अगर हमें 0.5 लीटर सोल्यूशन बनाना हो जिसका कंसंट्रेशन 20% हो मास बाय वॉल्यूम, तो हमें ऐसे सॉल्यूशन के लिए कितने सोल्यूट की ज़रूरत होगी, हाउ मच वी ऐड सोल्यूट टू गेट 0.5 लीटर ऑफ सोल्यूशन ऑफ 20%। ठीक है, तो आपको इन्होंने यहाँ पे क्या दे रखा है, यू हैव गॉट द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन दैट इज 20%, वॉल्यूम आपको उन्होंने दे रखा है 0.5 लीटर। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है, एक्चुअली वी हैव टू फाइंड द अमाउंट ऑफ सोल्यूट। तो फॉर्मूला क्या यूज होगा, the concentration of solution is equal to amount of solute upon amount of solution into 100। ठीक है, तो जो आपका कंसंट्रेशन है वो दिया है आपका कितना 20, तो हमने 20 पुट किया इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सोल्यूट को हमने मान लिया यहाँ पे x मान लिया। ठीक है, और सोल्यूशन का कितना वॉल्यूम दिया है 0.5 लीटर, ये हमने लिख दिया और इंटू 100 कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करें, 100 यहाँ पे आपके देखिए मल्टीपल में है, इसको हम इस तरफ लाएंगे टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, तो ये आपके अपॉन में आ जाएगा, ये हो गया 20/100 इज इक्वल टू x अपॉन 0.5। अब हम करेंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 20 इंटू 0.5। ठीक है, अब अगर 20 को आप 0.05 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी 10। 10 आ गई। अब जो आपका 100 है जो इन मल्टीप्लिकेशन है विद द x, 100 को जो है अब आप 10 के नीचे ले आइए, तो ये हो गया 10/100, x हो गया x इज इक्वल टू 10/100। अब आप इनको आपस में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1/10, 1 और 1 को आप जब 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.1 लीटर। यानी ये हमने क्या फाइंड कर लिया, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट। यानी अगर आपको 0.5 लीटर सोल्यूशन बनाना है तो यू नीड 0.1 लीटर अमाउंट ऑफ योर सोल्यूट। ठीक है, तो इसको एक बार हम जरा क्रॉस चेक कर लें। क्रॉस चेक करने के लिए क्या करेंगे, वी विल पुट द वैल्यू ऑफ x इन द फॉर्मूला 0.1 अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूशन 0.5 इंटू 100। तो 1 देखिए दोनों तरफ डेसिमल के बाद देखिए वैल्यूज इक्वल हैं, तो वी कैन रिमूव द डेसिमल पॉइंट, तो 1/5 हो गया, तो 1 इंटू 100 अपॉन 5 हो गया, तो 100 डिवाइडेड बाई 5 यू विल गेट 20, यानी आप हमारा जो आंसर है वो करेक्ट है। ठीक है, सो वी विल ट्राई टू सॉल्व more numericals based on these formulas in the next time. Thank you so much.